of tangent, and tangent will be y minus y1 is equal to m into x minus x1. This will become the equation of tangent. Okay. So what have we discussed till now? Tangents in normal way. If there is a function y is equal to f of x, then at any point p a comma f of a on the curve, the slope of tangent can be found by differentiation of the function. At a particular x equal to a, the derivative f dash a represents the slope of the tangent at that particular point, x equal to a, and the equation of tangent can be represented like this. Now there is another component that we can represent here, and that is the line perpendicular to the tangent, that we call this is the line perpendicular to tangent at the point of contact, and this we call as the normal. So equation of normal will only have a slight modification. Y minus f of a will be equal to minus 1 upon f dash a into x minus a. Now why are we doing minus 1 upon f dash a? Simply because of the fact that tangent and normal are perpendicular to each other at the very same point. Okay, so this becomes your equation of normal. Do you get it? Sir, can you explain again? हाँ, tangent की normal की पूरा. सर पूरा मतलब beginning से. अच्छा देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जब एक फंक्शन गिवन होता है, लेट मी टेक एन एग्जांपल और एग्जांपल से समझाता हूँ. एक फंक्शन दिया है हमको y इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x. हमको बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2. ठीक है, हमको इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट निकालना है. x इक्वल टू 4 कुछ और पॉइंट मान लेते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू 8. तो सबसे पहली बात पॉइंट आ गया 4,8. अब पॉइंट निकालने के बाद हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे. फंक्शन का डेरिवेटिव विल बी 2x माइनस 2. अब इसमें हम रखेंगे x इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 6. तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट से इक्वेशन बनाएंगे. इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पॉइंट पता ही है, स्लोप भी पता लग गई. तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस 8 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 4. ये हो गया टेंजेंट की इक्वेशन. और अगर हमसे कोई कहता है इक्वेशन बनाओ नॉर्मल की, तो हम कहेंगे ठीक है भैया, नॉर्मल में और टेंजेंट में बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ स्लोप जो होगी इसकी -1/6 हो जाएगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है और हमें पता है लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 जो होता है वो -1 होता है. इस हिसाब से नॉर्मल ये हो गया और टेंजेंट ये हो गया. आई बात समझ में? यस सर. नोट करिए.
Done? Yes, sir. Yes, sir. Noted. Okay. अच्छा, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो वेरी बेसिक क्वेश्चन इज दिस दैट आई टोल्ड यू. फंक्शन देंगे, पॉइंट देंगे, बोलेंगे पॉइंट पर फंक्शन का टेंजेंट बनाओ, नॉर्मल बनाओ. नाउ व्हाट आर, Abhijit sir, हाँ जी बोलो बेटा. today I had a math test on matrices and determinants. अच्छा, हाउ वाज इट? It went really nice, except for the last question where inverse of a matrix was to be found. It was a really long question. बाय ERCP. I used actually it was solving pair of linear equations using matrix method. Three equations actually in three variables. Ah, then you could have done by adjoint method. Were you able to find the inverse? Yes, I was able to find. Okay. हाँ जी. So y is equal to ऐसे दिया है, let's say, and let's say they ask you find equation of tangent. First case, parallel to x-axis. Second case, parallel to y equal to x. This question can also be framed as equally inclined to both axes. Third part, let's say perpendicular to y equal to 2x minus 3. तो हम यहां पर क्या करेंगे वो देखिए. ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो यहां पर देखो, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था पॉइंट दिया था, पॉइंट से हमने स्लोप बनाया था और स्लोप से हमने टैंजेंट बनाया था. ओके. अब यहां पर देखो उल्टा हो गया. यहां पर स्लोप गिवन है, स्लोप से हम पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट से हम टैंजेंट बनाएंगे. सो दिस इज रिवर्स. पहले स्लोप के बारे में बता रहे हैं इन ऑल द थ्री पार्ट्स, और फिर उसके बाद स्लोप से हम पॉइंट के बारे में पता करेंगे. जब पॉइंट मिल जाएगा तो टैंजेंट बना देंगे. अभी हम कैसे करेंगे वो देखते हैं. y dash equal to 2x minus 4. Now if they're saying parallel to x axis, तो parallel to x axis में स्लोप जो होती है वो 0 होती है. तो 2x minus 4 will be 0, यानी x will be 2. Now if x is 2, then y is 4 plus 3 7 minus 8 minus 1. तो इसका मतलब the point becomes 2 comma minus 1 and slope is 0. The equation will be y plus 1 is equal to 0 into x minus 2. इसका मतलब y plus 1 is equal to 0. अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं. तो they're saying parallel to Sir, y. I have a question. हाँ जी बोलो. Sir, you substituted x equal to 1 and y is x square minus 4x plus 3, right? हाँ. But Not I'm getting x equal to 2. Yeah, x equal to 2 only in that y equation, right? हाँ. 4 minus 8 plus 3. ठीक है. Yeah. हाँ. Now in the second part it is saying equally inclined to both the axes. तो अगर equally inclined to both the axes है, तो अगर parallel to केवल y equal to x बोला है तो 1 हो जाएगा, और अगर equally inclined to both the axes है तो फिर आंसर इसका प्लस माइनस 1 होगा, क्योंकि both axes का मतलब ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है. अगर ये हुआ तो स्लोप प्लस 1 होगा और ये हुआ तो स्लोप माइनस 1 होगा. तो इतना सा डिफरेंस याद रखिएगा. मैं अभी फिलहाल इसके लिए सॉल्व कर दे रहा हूं. तो 2x is equal to 5 and x is equal to 5 by 2. So if x is equal to 5 by 2, y is equal to 25 by 4 minus 10 plus 3. तो minus 3 by 4 है ना? नहीं, 25 and 12 37. 37 minus 10 नहीं 30. क्या कर रहा हूं मैं? हाँ ठीक है हो गया.
-7 minus Sir, 20. I have a question. Ah, Are we allowed to take that as -1 also? yes, if it was equally inclined to both the axes, then -1 is also a possibility. So but is it necessary to solve only for +1 or can we solve for -1 also? When we are saying parallel to y equal to x, then it is only +1. Equally inclined to axis, then it is plus and minus both. Okay. ये बन जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या करेंगे? थर्ड वाले में ये करेंगे, अगर उन्होंने बोला ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 के साथ परपेंडिकुलर है, तो दैट मींस आपका जो थर्ड केस में मैं सिर्फ कंडीशन लिख रहा हूं, 2x minus 4 will be equal to minus of half, because you know that अगर परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप माइनस हाफ होगा, इसका स्लोप 2 है, क्योंकि समझ में आया। फर्दर आपको सेम प्रोसीड करना है जैसे मैंने Yes, अभी sir. नोट करो। डन। Yes, sir. अच्छा, थोड़ा मन से बना रहा हूं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट फंक्शन थोड़ा सिंपल लूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ आइडिया एक्सप्लेन करना है आपको। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके वो ऐसे होंगे, जैसे आपको एक फंक्शन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व which passes through origin। ठीक है, डायग्रामेटिकली पहले समझ लीजिए हो क्या रहा है। एक फंक्शन है, ये बोल रहे हैं इसके उस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जो ओरिजिन से पास होती है। अब यहां पर देखो, उन्होंने ना आपको स्लोप बताया ना पॉइंट बताया, दोनों बातें खा गए। बस ये बताया कि इस टेंजेंट पर एक पॉइंट ओरिजिन है,
बट ये हमारी हेल्प नहीं करेगा टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने में, क्योंकि हमें तो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए होता है और इसी पॉइंट पर स्लोप चाहिए होता है, और हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन नहीं है। हाउ डू विल प्रोसीड, वो ध्यान से देखिएगा। लेट अस अज्यूम दैट द पॉइंट इज h, k. Sir, हाँ जी, can you explain that 2x minus 4 is equal to negative half question? बेटा वो बोला था ना y is equal to 2x plus 4 के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, दैट मींस इसका स्लोप 2 है तो उसका स्लोप नेगेटिव हाफ होगा ना। Yes, yes. अच्छा, now pay attention to what I'm doing right now. This is the most complicated kind of questions. तो अब देखो, हमने ये assume किया है that the point of contact is h, k, and the first equation we have in hk is k is equal to h square plus 1, because this has to satisfy the curve. Now let us find the derivative of the function. So dy by dx is 2x, so that means it is 2h, क्योंकि point x equal to h है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बनेगा वो इन जनरल बनेगा y माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 यानी k इज इक्वल टू 2h इंटू एक्स माइनस एच। ये बन गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। अब हमें ये पता है ये टेंजेंट 0 0 से पास होता है, इसका मतलब 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 2h इंटू माइनस एच, क्योंकि यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो माइनस एच स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2h स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2h, अरे बड़ा अच्छा सा आ गया, h स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी h इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 1। तो अगर h प्लस एंड माइनस 1 है तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी इन बोथ केसेस, क्योंकि h का स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 आएगा। तो एक पॉइंट आपका आ गया 1,2 और एक पॉइंट इसका ठीक सिमेट्रिकल, क्योंकि मैंने ऐसा फंक्शन लिया है तो सिमेट्रिकल यहाँ पर भी एक पॉइंट है -1,2। इन दोनों से बनने वाले जो टेंजेंट्स होंगे वो पैरेलल, वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होंगे। तो अब टेंजेंट की इक्वेशन क्या करेंगे हम, तो वी कैन राइट इट एज y माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 इज इक्वल टू 2h, तो प्लस माइनस 2 इंटू x माइनस प्लस 1। माइनस प्लस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस माइनस है, तो उल्टे हो जाएंगे साइन। तो जब ये प्लस लेंगे तो ये माइनस लेंगे, जब ये प्लस लेंगे तो ये माइनस लेंगे, और जब ये माइनस लेंगे तो ये प्लस लेंगे। समझ में आया? सर ब्रैकेट में x के बाद क्या लिखा आपने? क्या? सर ब्रैकेट में x के बाद +-2 फिर ब्रैकेट Minus x। plus. माइनस प्लस क्यों लिखा है बेटा, यहाँ माइनस है और h की वैल्यू प्लस और माइनस 1 है, तो जब यहाँ माइनस होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और जहां यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए रिवर्स हो जाएंगे साइंस। ओके सर। Please keep this question in mind, it is very very important. Sir, I have a question. हाँ जी, Sir, is plus. Sir, why can't we replace minus plus with plus minus? They are one and the same, right? no they are not one and the same, because जब यहाँ पर स्लोप आप +2 लोगे तो यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, स्लोप का वैल्यू 2h है, जब आप +1 लोगे तो यहाँ पर +2 आएगा, और जब यहाँ पर +2 आएगा तो यहाँ -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x की जगह आप h की जगह 1 रखोगे, और जब आप यहाँ पे -1 लोगे तो स्लोप -2 आएगा, और यहाँ पर माइनस ऑफ -1 यानी x +1 आएगा। Yeah. Okay. रिवर्स कॉन्सेप्ट होगा, इसीलिए वो इसको ऐसे करना पड़ेगा।
समझ आया? यस सर। ओके, और कुछ है बताने को इसमें? रुक जाओ। हाँ, सपोज ऐसे क्वेश्चन दे दे। Should we start doing questions from NCERT? हाँ, रुक जाओ, बता रहा हूँ बेटा। पहले मैं जो बताना है वो सब बता दूं। t इज इक्वल टू पाई बाय 2। सपोज ये वाला एग्जाम्पल एक देखते हैं। ठीक है, हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है एट द पॉइंट t इक्वल टू पाई बाय 2 फॉर दिस फंक्शन। तो हम सबसे पहले इसका dy बाय dx निकालेंगे। नाउ यू नो दिस पैरामेट्रिक फॉर्म और dy बाय dx आपको निकालना सिखाया है। सो इट विल बी माइनस 3b cos square t sin t divided by 3a sin square t cos t। तो 3 and 3 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो वी हैव माइनस b बाय a cot t। ठीक है, और cot 90 कितना होता है? 0, तो इसका स्लोप तो 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, और अगर हम x का वैल्यू देखते हैं तो वो a आएगा, और y का वैल्यू देखते हैं तो वो 0 आएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है और sin 90 1 होता है। तो इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस ए। तो y इक्वल टू 0, ये आ जाएगी इक्वेशन। दैट मीन्स इसका जो टेंजेंट एट पाई बाय 2 है वो x एक्सिस है। y इक्वल टू 0 इंप्लाइज x एक्सिस। हाँ जी, नेक्स्ट एक क्लास छोटा सा कॉन्सेप्ट, दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अब देखो, अगर दो कर्व्स ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम दो टैंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इनके बीच का जो एंगल थीटा है
वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट्स कॉल दिस फंक्शन इज fx एंड sorry not it's the same, this function is gx. So सबसे पहले we need the point of intersection, that is let's say x equal to a. तो यहाँ पर हम m1 निकालेंगे f dash a और m2 निकालेंगे g dash a, ठीक है। और उसके बाद tan थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो वही बनेगा जो नॉर्मली होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, ठीक। दिस थीटा इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है। फाइंड point of intersection, I mean sorry, not point of intersection, angle of intersection in first quadrant, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करोगे वो देखो, सबसे पहले आपको निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए आप क्या करो, सपोज यहां से y की वैल्यू निकाल लो, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 4, और इस x स्क्वायर बाय 4 को दूसरे वाले में रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक जगह से y का वैल्यू निकाला और दूसरी जगह पर रख दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 64 इज इक्वल टू 4x। आई कैन से x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 256x, है ना। नहीं नहीं नहीं, ये तो 16 होगा, 64 क्यों होगा, x cube is 64. हाँ यहाँ पर 6, हाँ तो x क्यूब इज इक्वल टू 64 यानी x इज इक्वल टू 4, और अगर x को 4 रखोगे तो 16 बाय 4, तो y भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका x और y दोनों 4 है। अब आप पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो ये जाएगा 2x इज इक्वल टू 4y डैश, यानी y डैश इज इक्वल टू 2x अपॉन 4, यानी 4 रखते ही 2 हो जाएगा। और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाय y डैश इज इक्वल टू 4, यानी y डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन y दैट इज 4, तो 1 बाय 2 हो जाएगा। तो आपका जो tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 माइनस 1 बाय 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 बाय 2, तो कितना आया 3 बाय 2, और ये 1 प्लस 1 2, तो ये आ जाएगा 3 बाय 4। तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स 3 बाय 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आया भैया? Sir, that's 37 degrees, Yes, right? sir. हाँ वो जो भी है वो हमारे लिए उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, हमें तो बस आंसर देने से मतलब। हाँ जी, इज दिस ओके? Yes, sir. Understood. Yes, sir, understood. ओके, तो अब आप इसकी एक्सरसाइज चालू करिए। आई थिंक देयर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, वेट लेट मी चेक। जितने भी है फटाफट आधे तो करो ही, है अभी करीब 40-45 मिनट है। 12-13 क्वेश्चन करने आराम से कर सकते हैं, आधे क्वेश्चन तो फटाफट कर सकते हैं इसके, अभी के अभी चालू कर दीजिए। And if you get stuck in a question, then please ask. Don't hesitate in asking. जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म होगा, जल्दी जल्दी रिवीजन होगा, उसके बाद रिवीजन के टेस्ट होंगे, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज होगी, फिर उसके बाद तुम पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओगे, फिर बोर्ड में तुम्हारे 100 नंबर आ जाएंगे, समझे। तो जो लोग जेई मेंस देंगे उनमें कम से कम 70-80 नंबर ले आएंगे 100 में, बस हमारा काम हो जाएगा। देखो 1 मिनट में समझा दिया तुम्हारा पूरे साल का प्लान। प्रहर्ष बेटा इतना देर से क्यों आ रहे हो? पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गई, क्लास कंप्लीट हो गई, तब तुम आ रहे हो बेटा। प्रहर्ष
रिकॉर्डिंग देख लियो बेटा अब, और क्या बोलूं। हाँ भाई, चालू कर दो एक्सरसाइज। प्रहर साहब, प्रीवियस एक्सरसाइज का जो कुछ बचा है वो कंप्लीट करो। आफ्टर यू हैव सीन द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास, आफ्टर द क्लास, देन यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज। What, sir? अभी जो प्रीवियस, जो कल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला दिया था, वो कंप्लीट हुआ आपका? Sir, पूरा नहीं। हाँ, तो अभी उसको कंप्लीट करो, फिर क्लास के बाद इसको देखना। चालू करो। आया मैं 1 मिनट में। कोई दिक्कत है तो पूछो। हाँ।
और एक questions? Yes, sir.
हो रहे क्वेश्चंस? यस सर। ठीक है, अब आप लोग इसे कंप्लीट करो। कल फिर नया टॉपिक पढ़ाऊंगा और डाउट्स भी ले लूंगा इसके अगर कोई हो तो। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।